Good afternoon, class. I hope you all are fine. Okay. So let's start. In previous classes, what we have done? We had finished chapter number 5, Healthy, Staying Healthy. We have completed this chapter, Staying Healthy. Reading part done. Exercise also done. Now we will revise chapter number 1. Today we will revise chapter number 1. So open the page number 5. Page number 5. Take out your textbook, EVS textbook, and open the page number 5. Things around us. Chapter number 1, Things around us. Today we will do revision of chapter number 5. Sorry, chapter number 1. Open the page number 5. Now put your finger on these words and repeat after me. God has created this beautiful earth for us to live. Repeat again. God has created this beautiful earth for us to live. किसने क्रिएट किया है ये अर्थ को? किसने क्रिएट किया है? गॉड ने. गॉड हैज क्रिएटेड दिस ब्यूटीफुल अर्थ फॉर अस टू लिव. हमारे रहने के लिए गॉड ने इस ब्यूटीफुल अर्थ को क्रिएट किया है. फुल स्टॉप. दैट ही मेड एन एनवायरनमेंट ऑन द अर्थ. He made, put your finger on this sentence. He made an environment on the earth so that we can survive and grow well. What is the spelling of survive? S-U-R-V-I-V-E. Survive. And what is the spelling of environment? E-N-V-I-R-O-N-M-E-N-T. Environment. E-N-V-I-R-O-N-M-E-N-T. Environment. He made an environment on the earth so that we can survive and grow well. Now turn the page, page number 6. Page number 6. Look here. In this picture, God made the hills, mountains and the rivers. Repeat again. God made the hills, mountains and the rivers. क्या क्या बनाया है भगवान ने? Hills, mountains and the rivers. क्या क्या बनाया है? Hills, mountains and rivers. Now look here. He made the sun, moon, sky and stars. और क्या क्या बनाया है? He made the sun, moon and the sky. Sun, moon, sky और stars. ये सारी चीजें किसने बनाई है? भगवान ने बनाया है. Hills, mountains, rivers, sun, moon, sky, stars. ये सब किसने बनाया है? भगवान के द्वारा बनाया गया है. These are natural things. Now look here. Put your finger on these words. God made animals. God made animals
birds and insects. God made animals, birds and insects around us. और क्या बनाया है? एनिमल्स, बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स. ये भी क्या है? नेचुरल थिंग्स है. ये भी भगवान के द्वारा बनाया गया है. They are also a part of our environment. They are also a part of our environment. ये भी हमारे environment का पार्ट है. ये भी क्या है? हमारे environment के पार्ट है. All these are natural things. All these are natural things. ये क्या है? सब नेचुरल थिंग्स है. ये सारी चीजें क्या है? नेचुरल थिंग्स है. यहाँ देखो एनिमल्स. एनिमल्स हियर मून, स्काई, stars, river, hill, mountain. These are natural things. These are natural things. Now, human beings have also made many things. Human beings have also made many things. मनुष्य के द्वारा भी बहुत सारी चीजें बनाई गई है. ये सारी चीजें तो किसने बनाई है? भगवान ने बनाई है. और मनुष्य के द्वारा भी कई सारी चीजें बनाई गई है. Human beings have also made many things. They also form a part of our environment. वो भी क्या है? हमारे environment का एक पार्ट है. ये भी क्या है? हमारे environment का एक पार्ट है. जैसे देखो यहाँ, look here, house, market, hospital, school. We should keep our environment clean. We should keep our environment clean. हमको हमारे environment को कैसे रखना चाहिए? क्लीन रखना चाहिए, साफ सुथरा रखना चाहिए. Dirty environment can make us sick. Dirty environment can make us sick. हम क्या हो सकते हैं? बीमार हो सकते हैं अगर हमारे आसपास का एनवायरनमेंट डर्टी रहा, गंदा रहा, तो हम कैसे हो जाएंगे? बीमार हो जाएंगे, है ना? नाउ पेज नंबर 7. पेज नंबर 7. हाउ कैन वी प्रोटेक्ट आवर एनवायरनमेंट? हाउ कैन वी प्रोटेक्ट आवर एनवायरनमेंट? हमको हमारे एनवायरनमेंट को कैसे प्रोटेक्ट करना चाहिए? हमको हमारे एनवायरनमेंट को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं? सो इन फर्स्ट पिक्चर, सी हियर, लुक हियर, डू नॉट कट द ट्रीज, दे प्यूरिफाई द एयर. ये यहाँ क्या कर रहा है? इस पिक्चर में पेड़ों को कट कर रहा है. क्या कर रहा है? यहाँ पर पेड़ों को कट कर रहा है, जो कि हमको नहीं करना है. हमको पेड़ों को कट नहीं करना चाहिए. डू नॉट कट द ट्रीज, दे प्यूरिफाई द एयर. पेड़ों को कट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? नहीं करना चाहिए. क्या करते हैं वो? दे प्यूरिफाई द एयर. हवा को शुद्ध बनाते हैं और कई सारे बेनिफिट्स होते हैं ट्रीज के. दे गिव्स अस shadow, we can make medicines. Okay, so do not cut the trees. Fruits gives us fruits. Now second picture, look here, throw waste in the dustbin and keep it covered. Throw waste in the dustbin and keep it covered. हमको जो कचरा होता है उसको कहाँ फेंकना चाहिए? डस्टबिन के अंदर फेंकना चाहिए या इधर उधर कहीं भी फेंक देना चाहिए? नहीं. कचरे को हमेशा, वेस्ट को डस्टबिन के अंदर डालना चाहिए और उसको कैसा रखना चाहिए? कवर करके रखना चाहिए. कवर्ड होना चाहिए. डस्टबिन कैसा होना चाहिए? कवर्ड होना चाहिए. It helps to keep our
environment clean. हम डस्टबिन का यूज करेंगे तो गंदगी नहीं होगी और हमारा इन्वायरमेंट कैसा होगा, क्लीन होगा। अगर हम वेस्टेज को इधर उधर फेंक देंगे तो क्या होगा, सारी जगह गंदा हो जाएगा और इन्वायरमेंट भी गंदा हो जाएगा। फिर क्या होगा, फिर हम बीमार हो जाएंगे और बहुत सारी मेडिसिन खाना पड़ेगी, डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। तो आप चाहते हो क्या ये? नहीं। सो यू हैव टू थ्रो द वेस्ट इन द डस्टबिन। कचरे को हमको कहाँ डालना है? डस्टबिन के अंदर। थ्रो वेस्ट इन द डस्टबिन। अगर कोई इधर उधर बाहर फेंक रहा है तो हमको उसको बोलना है कि हमको वेस्टेज को कहाँ डालना है? डस्टबिन के अंदर। ठीक है। अगर आप कहीं बाहर जा रहे हो और अगर कोई ऐसे कचरा फैला तो आपको उसको बोलना है कि वेस्टेज को कहाँ डाले? डस्टबिन में। यूज डस्टबिन। ओके। नाउ इन थर्ड पिक्चर लुक हियर। Do not throw plastic bags and garbage in water sources. हमको वाटर सोर्सेस के अंदर गार्बेज और वेस्टेज नहीं डालना चाहिए। प्लास्टिक एंड गार्बेज नहीं डालना चाहिए। डू नॉट थ्रो प्लास्टिक बैग्स। प्लास्टिक बैग्स नहीं डालना चाहिए। एनिमल्स अगर प्लास्टिक बैग्स खा लेते हैं तो क्या हो जाते हैं, वो उनके गले में अटक जाता है और वो बीमार हो जाते हैं। इसलिए हमको प्लास्टिक बैग्स को इधर उधर नहीं डालना चाहिए। वाटर सोर्सेस के अंदर नहीं डालना चाहिए। इससे क्या होगा, अगर हम पानी के अंदर कहीं पर भी वेस्टेज डालेंगे तो पानी कैसा हो जाएगा? गंदा हो जाएगा और फिर हम पी पाएंगे क्या? वो नहीं। और अगर हमने वो गंदा पानी पी लिया तो फिर क्या होगा? फिर अगर हम गंदा पानी पिएंगे तो फिर क्या होगा? फिर से बीमार हो जाएंगे। फिर क्या करना है? डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, बहुत सारी मेडिसिन खाना पड़ेगा। तो इसलिए हमको ये भी नहीं करना है। वेस्टेज को पानी में, वाटर सोर्सेस के अंदर नहीं डालना चाहिए। ठीक है। रिवर्स में या पॉन्ड्स, रिवर्स, जहाँ भी हम जाते हैं वहाँ हमको वेस्टेज और प्लास्टिक बैग्स पानी में नहीं फेंकना चाहिए। द वाटर बिकम अनफिट फॉर यूज। द वाटर बिकम अनफिट फॉर यूज। वो यूज करने लायक होगा क्या पानी? उसमें अगर बहुत सारा गंदा कचरा वगैरह गिरा हुआ रहेगा तो पानी पीने योग्य रहेगा नहीं। हम पानी पी सकते हैं क्या? वो यूज कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं। गंदा पानी हम यूज नहीं कर सकते। इसलिए हमको किसी भी वाटर सोर्स में वेस्टेज नहीं डालना चाहिए। प्लास्टिक बैग्स नहीं डालना चाहिए। नाउ डू नॉट वॉश क्लॉथ्स Do not wash clothes and bath animals in the rivers. It makes the water dirty. Do not wash clothes and bath animals in the rivers. It makes the water dirty. हमको क्या नहीं करना चाहिए? जो नदियाँ होती है वहाँ पर एनिमल्स को नहलाना नहीं चाहिए। जो नदियों में जो एनिमल्स को नहलाते हैं तो उससे क्या होता है? पानी गंदा हो जाता है। तो जो एनिमल्स होते हैं उनको नदियों में नहीं नहलाना चाहिए और कपड़े भी नहीं धोना चाहिए। डू नॉट वॉश क्लॉथ्स एंड बाथ एनिमल्स। कपड़े भी नहीं धोना चाहिए और एनिमल्स को भी नहीं नहाने देना चाहिए। इससे क्या होगा? वाटर हमारा डर्टी हो जाएगा। अगर ऐसा होगा तो कपड़े धोएंगे नदियों में, एनिमल्स को नहलाएंगे तो क्या होगा? पानी गंदा हो जाएगा तो हम पी नहीं पाएंगे। तो इसलिए हमको नदियों में गंदा नहीं करना चाहिए। नाउ डू नॉट वेस्ट पेपर मेनी। डू नॉट वेस्ट पेपर। पेपर वेस्ट नहीं करना चाहिए। मेनी ट्रीज आर कट टू मेक पेपर। मेनी ट्रीज आर कट टू मेक पेपर। पेपर बनाने के लिए क्या क्या हो रहा है? बहुत सारे पेड़ काटे जा रहे हैं। इसलिए हमको क्या करना है? पेपर को वेस्ट नहीं करना। हम पेपर वेस्ट नहीं करेंगे तो पेड़ भी नहीं काटे जाएंगे। और अगर हम पेपर्स को वेस्ट करेंगे तो क्या होगा? बहुत सारे फिर पेड़ काटना पड़ेगा क्योंकि पेपर्स कैसे बनता है? ट्रीज से बनता है। तो इसलिए हमको ज़्यादा से ज़्यादा पेपर वेस्ट नहीं करना चाहिए।
भी कट होने से बच जाएंगे अगर आप पेपर वेस्ट नहीं करेंगे तो। नाउ चेक योर व्हीकल पॉल्यूशन रेगुलरली। चेक योर व्हीकल पॉल्यूशन रेगुलरली। एयर बिकम्स डर्टी ड्यू टू स्मोक। हमको हमारी जो कार होती है, बस होती है, उनको क्या करना है, रेगुलरली चेक करना है कि गाड़ियों में से धुआं तो नहीं निकल रहा है। अगर धुआं निकलेगा तो क्या होगा, एयर पॉल्यूशन होगा। एयर बिकम्स डर्टी ड्यू टू स्मोक। हवा कैसी हो, एयर बिकम्स डर्टी, हवा कैसी हो जाएगी, अशुद्ध हो जाएगी ड्यू टू स्मोक। अगर ये गंदा धुआं जाएगा तो हमारा वातावरण कैसा हो जाएगा, अशुद्ध हो जाएगा। इसलिए हमको हमारे जो व्हीकल्स होते हैं उनको रेगुलरली चेक करना चाहिए। चेक योर व्हीकल पॉल्यूशन रेगुलरली। एयर बिकम्स डर्टी ड्यू टू स्मोक। कैसे होता है, हवा अशुद्ध हो जाती है। जब धुआं होता है तो हवा कैसे हो जाएगी, अशुद्ध हो जाएगी। क्लीन एनवायरनमेंट हेल्प अस टू स्टे हेल्दी। एनवायरनमेंट अगर क्लीन रहा तो क्या होगा, हम भी हेल्दी रहेंगे। और हमारा एनवायरनमेंट अगर गंदा रहा तो फिर क्या होगा, बीमार हो जाएंगे। इसलिए हमको हमारे एनवायरनमेंट को कैसे रखना है, क्लीन रखना है, ताकि हम लोग भी हेल्दी रहे और बीमार ना पड़े। नाउ पेज नंबर 8, पेज नंबर 8, टिक द करेक्ट आंसर। टिक द करेक्ट आंसर। क्या है फर्स्ट, टिक द करेक्ट आंसर में एवरीथिंग, no need to write, okay, this is your oral class, this is your oral class only, no need to write, कोई भी नहीं लिखेगा। everything that we see around us forms are, there are three options: nature, behavior and environment. Everything that we see around, हमारे आसपास जो है वो किस फॉर्म में, नेचर, बिहेवियर और इन्वायरमेंट। व्हाट इज द करेक्ट आंसर, यू हैड ऑलरेडी डन, यस, करेक्ट आंसर इज इन्वायरमेंट। हमारे आसपास क्या है सारा, इन्वायरमेंट। We should throw waste. We should throw waste in it. First, polybag, dustbin and bucket. We should throw waste in it. हमें कचरे को कहाँ फेंकना है, पॉलीबैग के अंदर, डस्टबिन के अंदर या बकेट के अंदर। कहाँ फेंकना है, तो वेस्टेज कहाँ फेंकना है, पॉलीबैग, नो, देन बकेट, देन डस्टबिन। तो डस्टबिन इज करेक्ट आंसर, ओके। We should throw waste in the dustbin. Clean environment. Clean environment helps us to
healthy, healthy, sick और sad। क्लीन, अगर हमारा इन्वायरमेंट क्लीन रहा तो क्या होगा, हम हेल्दी रहेंगे, बीमार रहेंगे या सैड रहेंगे? क्या होगा, अगर इन्वायरमेंट हमारा क्लीन रहा तो क्या होगा, हेल्दी होंगे हम। कैसे होंगे, हेल्दी होंगे या फिर बीमार हो जाएंगे। क्लीन इन्वायरमेंट रहा तो क्या होगा, हेल्दी रहेंगे। क्लीन एनवायरमेंट हेल्प्स अस टू स्टे हेल्दी। ओके, सो व्हाट इज द आंसर, हेल्दी। हेल्दी इज करेक्ट आंसर। Now second, matching, match the following, dirty surroundings, क्या होगा आंसर, make us see more natural thing, houses, man-made things, smoke pollutes air and trees purify air, trees purify air. Now true false, true false, animals, birds and insects are also part of our environment. Animals, birds and insects are also part of our environment. ये हमारे environment का part है। True or false? Yes, true. Then second, we should bath animals in the rivers. We should bath animals in the rivers. हमको एनिमल्स को नदियों में नहलाना चाहिए। ट्रू और फॉल्स? यस, फॉल्स, हमको नदियों में नहीं नहलाना चाहिए। क्या होगा, वाटर बिकम डर्टी। नाउ थर्ड, वी शुड वेस्ट पेपर, पेपर वेस्ट करना चाहिए? यस और नो? नो, सो दिस इज ऑल्सो फॉल्स। वी शुड लिव इन ग्रीन एंड क्लीन सराउंडिंग्स, कहाँ रहना चाहिए हमको, ग्रीन एंड क्लीन सराउंडिंग। वी शुड लिव इन ग्रीन एंड क्लीन सराउंडिंग, हमको क्लीन एनवायरनमेंट में रहना चाहिए या गंदे वातावरण में रहना चाहिए? क्या होगा, ट्रू, वी शुड लिव इन ग्रीन एंड क्लीन सराउंडिंग्स, सो दिस इज ट्रू। नेक्स्ट, गॉड हैज क्रिएटेड वंडरफुल वर्ल्ड अराउंड अस। वर्ल्ड किसने क्रिएट किया है, गॉड ने और ह्यूमन बीइंग्स ने? गॉड हैज क्रिएटेड वंडरफुल वर्ल्ड अराउंड अस, सो दिस इज आल्सो ट्रू। नाउ डी, राइट एंड फॉर नेचुरल थिंग्स एंड एम फॉर मैन-मेड थिंग्स। लुक हियर, ये आपको यहाँ आइटम्स दे रखी है, आपको क्या करना है, जो चीजें नेचुरल है उसके सामने क्या लिखना है, एन, और जो मैन मेड थिंग्स है उसको क्या करना है, वहां क्या लिखना है, एम। नाउ लुक हियर, सन, सन इज अ नेचुरल थिंग और मैन मेड थिंग? किसने बनाया सन को? हु हैज क्रिएटेड द सन, गॉड और ह्यूमन बीइंग्स? और सन हैज क्रिएटेड बाय गॉड, so this is natural thing, so write here n. Then car, who has created car? Car made by human beings, so this is man-made thing. Book, book is a natural thing or man-made thing? Man-made thing, very good. Now stars, who has created stars? Human beings? This is man-made things? No, this is natural things. Next, flowers. Flowers is natural things or man-made things? Yes, correct. This is also natural things. Then parrot. Parrot is also natural things because this is created by God. Animals, birds, insects, that all that created by God. So this is natural thing. Computer. Computer is created by God. किसने बनाया है कंप्यूटर? भगवान ने? No, then this is man-made thing. So you have to write here and this is man-made thing.
It is created by human. Okay. Now butterfly. Butterfly is bird. So bird, who has created bird? God. So this is natural. Sun, natural thing. Sky, man-made. Book, man-made. Star, natural. Flowers, natural. Parrot, natural thing. Computer, man-made thing. Butterfly, natural. Okay. Now we are coming to the question answer. Now we are coming to the question answer. First one is, what is environment? What is environment? I am writing only answer. What is environment? Things around us. Answer is things. First letter you have to write capital letter. Don't write small letter. Things around us. Around us is known as. Things around us is known as environment. So how to learn question answers? First you have to learn spellings. First you have to learn spellings. Things, like things. Learn the spellings of thing around. This is Things. Things. What is the spelling of things? Things. Things. Then you have to learn spelling of around. 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 Us. 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 Is. Is. Then known. 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 Known as. ASL. And environment. ENVIR. You can break into three parts. ENVIRONMENT. 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 First you have to learn spellings of each word, then you have to write answer. Things around us is known as environment. Okay? What you have to do? First you have to learn spellings of each word, then write answer. Now second one, why should we grow more trees? Why should we grow more trees? We should grow more trees to save our environment. Same you have to learn spellings. Okay. What you have to do? You have to start from we. You have to start from we. We should grow more trees. यहाँ तक आपको कैसे लिखना है? क्वेश्चन से देखकर लिखना है. We should, look here. We should grow more trees. Trees तक आपको कहाँ से देखकर लिखना है? क्वेश्चन में से देखकर. Trees. We should grow more trees. अब आपको कितना लर्न करना है? To save our environment. कितनी स्पेलिंग लर्न करना है? 4 स्पेलिंग्स. TO, to, SAVE, save, ROUR, environment. कितनी स्पेलिंग लर्न करना है? 4 स्पेलिंग. Then your answer will be completed.
We should grow more trees to save our environment. Okay? So you have to learn like this. आधा आंसर आपके क्वेश्चन में ही होता है, तो आपको वहां से देखकर लिखना है. Now third one, why should we not wash clothes in ponds or rivers? Why should we not wash clothes in ponds or rivers? कपड़े हमको तालाबों नदियों में क्यों नहीं धोना चाहिए? ये आपका क्वेश्चन. Why should we not wash clothes in ponds or rivers? सेम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? V से स्टार्ट करेंगे. फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखना है V. WEV should. We should not wash clothes in ponds or we should not wash clothes in ponds or rivers. तीसरा कहाँ से लिखा हमने? क्वेश्चन में से देख के लिखा. फिर क्या लिखा है? बिकॉज इट मेक्स वाटर डर्टी. यहां से आपको लर्न करना है. बिकॉज इट मेक्स वाटर डर्टी. फुल स्टॉप. जब सेंटेंस एंड होता है तो क्या करना होता है? फुल स्टॉप पुट करना है आपको. We should not wash clothes in ponds or rivers. यहाँ तक क्वेश्चन में से देख के लिखा. यहाँ से लर्न. Because it makes water dirty. Because it makes water dirty. You have to learn spelling of because. B-E-C-A-U-S-E. Because. B-E-C-A-U-S-E. Because it. I-T. It makes. M-A-K-E-S makes water. W-A-T-E-R water dirty. D-I-R-T-Y dirty. तो आपको इस तरीके से लर्न करना है. पहले क्वेश्चन से we should not wash clothes in ponds or rivers. यहाँ से क्वेश्चन में से देख लिखा है. Then because it makes water dirty. Okay. So question answer finished. Now we will do revision of next chapter in the next class. Okay. Bye bye children. Thank you. Take care.